that we are discussing the chapter called cell organization, or you say cell structure, right? If you recall, before we move on to our next topic or our next discussion, we must recall the things that we discussed till this class. It is very important to revise, right? So just recall or just revise what we discussed up to the last class. If we begin with the first or very initial thing, we started the discussion with cell, that is cell organization, where we need to understand that in this chapter we are going to discuss everything about the cell and its interior, right? Or what exactly is present in different types of cells as a structure and what are their related functions. That's what you call cell organization. And with this thing, if you see, we started our discussion with the basic things about cell, various non-related random things about cell, and we next discussed cell theory, the first core topic of this particular chapter, right? If you recall, then we discussed that the cell theory as a thing was given jointly by two scientists. Try to recall the names: Schleiden and Schwann. Try to recall again. Who was Schleiden? Schleiden was basically a botanist, while Schwann was zoologist. Means Schleiden studied plant cell while Schwann studied animal cell, and their joint observations were put forward by them as a modern cell theory, right? And in that cell theory we discussed some 11, 12, 13 points. Okay, number doesn't matter. What matters is what things we studied or what things we discussed were about cell and was all about their observations on the plant and animal cells, right? Like if you recall certain things in cell theory, you can easily recall some points like cell can survive independently but its organelles cannot survive independently. हमने इसका पूरा मतलब समझा, जैसे कि cell is the thing in the form of which life passes from one generation to another generation, or cell is a link between two successive generations. We elaborated this point also. Like we discussed many other things, कि cell consists of a mass of protoplasm with a nucleus and a cell membrane or plasma membrane around it, and additionally we said that plasma membrane or cell membrane is a compulsory component of any living cell on the earth, right? Then we discussed many other points, like many cells like plant cells are totipotent, means they have ability to give rise to whole plant, right? Then we discussed something about genetic material, that every cell of an organism has got its own genetic material, and in that genetic material all the genes are present which are responsible for showing different characteristics or different properties by that cell and hence by that organism, right? We discussed some other things about cell, like different cells of a same organism may be different depending upon their function, or you say cells of a same organism are modified in a different way in order to perform different functions. But even if they are modified on the basis of their function, they are fundamentally similar, or there are certain basic things which are similar amongst all different cells. We also said, according to cell theory, that all the present day cells have a common origin, means सभी सेल्स या सभी मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स आज जितने भी हम देखते हैं उन सभी के अंदर प्रेजेंट सेल्स की एक कॉमन एंसेस्ट्री है, या फिर एक कॉमन सेल से ही ये सभी सेल्स अराइज हुई है, राइट? फिर हमने ये भी बोला, सेल थ्योरी में ये भी पढ़ा कि जो फंक्शन ऑर्गेनिज्म के सेल्स में नहीं है वो फंक्शन कभी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं हो सकता, बिकॉज when you say organism is performing some function, so actually वो function
कौन परफॉर्म कर रहा है? उसकी कंस्टिट्यूएंट सेल्स। इसीलिए हमने ये भी पॉइंट सेल थ्योरी में बोला था कि सम काइंड ऑफ एक्टिविटी शोन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली अ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज प्रेजेंट इन द बॉडी और प्रेजेंट इन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीजें अभी हम बहुत क्विकली हमने बोली, लेकिन ये क्विकली इसलिए बोली बिकॉज वी आर रिकॉलिंग द थिंग्स। इनको एक एक चीज को हम पूरी डिटेल में इलेबोरेटेड मैनर में पढ़ चुके हैं अप टू द लास्ट क्लास। नाउ इफ यू रिकॉल लास्ट क्लास में और उससे पहले भी हमने ये बात बार बार दोहराई है या बार बार बोली है कि जो सेल्स है दुनिया भर में पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स है वो सेल्स बेसिकली दो तरह की है, राइट? कौन सी दो तरह की सेल्स है? थोड़ा सा रिकॉल करो, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। लिखा था ना हमने लास्ट क्लास में बोर्ड पे, और हमने उनको एलैबोरेट भी किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स उन तरह की सेल्स को कहा जाता है या उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है जिनकी सेल्स में जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। मतलब कुल मिला के हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन सेल्स के पास न्यूक्लियस नाम का ऑर्गेनल नहीं होता, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, उन तरह की सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। जबकि जिन सेल्स में प्रोमिनेंट क्लियर कट दिखने वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, या फिर थोड़ा हम ज्यादा आगे जाके कहे तो जिन ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उन तरह की सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। थोड़ा सा रिसर्च के बेसिस पे हम कहना चाहे तो हम ये फॉर्मली कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कंपैरेटिवली पुरानी सेल्स है या लेस डेवलप्ड सेल्स है, और यूकैरियोटिक सेल्स नई या ज्यादा डेवलप्ड सेल्स है। मतलब दुनिया में पहली आने वाली सेल्स प्रोकैरियोटिक है और उसके बाद बनी हुई सेल यूकैरियोटिक है। बट अभी फिलहाल हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ओरिजिन पढ़ना नहीं है या इवोल्यूशन पढ़ना नहीं है। तो हमारे लिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फिलहाल के लिए इतनी बात जरूरी है कि हम क्लियर मैनर में समझें कि प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या और यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या। टू अवॉइड एनी फर्दर कंफ्यूजन मैं यहां फिर से लिख रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब द सेल टाइप in which nucleus is absent. The cell type in which nucleus is absent is simply called as prokaryotic cell, right? फिर एक आगे बढ़ने से पहले एक बात फिर से हम कह देते हैं कि इस चैप्टर में हमको सेल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, राइट? तो सेल ऑर्गेनाइजेशन हमको दुनिया में प्रेजेंट दोनों तरह की सेल्स का पढ़ना है। तो क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादा सिंपल है और पुरानी है, मतलब फर्स्ट अराइज्ड है, हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर यूकैरियोटिक सेल को उसके बाद पढ़ेंगे। तो आप कुल मिला के ये समझ लो कि हमको इस चैप्टर में बचे हुए हिस्से में कुल मिला के दो ही मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल मतलब 2 लेक्चर में सब खत्म हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। हम ये सोचो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं उनमें से हर एक कंपोनेंट को हमको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल जब स्टार्ट होगी तो उसके भी हर एक स्ट्रक्चर को हमको डिटेल में पढ़ना है। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो एक इसीलिए मैं कल या इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि जितना हो रहा है,
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उतना हम फर्मली समझते जाए तो आगे हमें हमेशा आसानी रहेगी। रहा सवाल कौन सी चीज हम आज पढ़ने वाले हैं या कौन सी चीज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तो नो डाउट वो है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, अब ये डेफिनेशन किस चीज का है ध्यान से देखो, हेडिंग इज प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल के डेफिनेशन के हिसाब से एनी सेल इन विच nucleus is absent is a prokaryotic cell, or you can say an organism whose cells do not contain nucleus are said to be prokaryotic organisms। सोचो हम कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ह्यूमंस एनिमल्स है बोलोगे तुम, बट यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ये नहीं है कि एनिमल्स है कि प्लांट्स है कि फंगस है। सेल के बेसिस पे हम कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल के बिना पे हम ह्यूमंस को मतलब खुद को कैसा कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कि यूकैरियोटिक? आंसर इज वेरी सिंपल, वी आर एज अ ह्यूमंस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। व्हाई वी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स? बिकॉज all our cells contain a prominent nucleus, right? इसी तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं है, all of them are prokaryotic organisms। तो फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को अगर हम एनलिस्ट करें या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? थोड़ा सा पहला लेक्चर या शायद दूसरा लेक्चर रिकॉल करो। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने क्या बोला था, या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं उनको हमने एनलिस्ट किया था। फिर से एक बार करते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो, बैक्टीरिया, फिर साइनोबैक्टीरिया, फिर एक्टिनोमाइसेट्स। अब ये नाम थोड़े से अजीब हो सकते हैं हमारे लिए, डोंट वरी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नाम हमारे डिस्कशन में इतनी बार जाएंगे कि दे विल बी वेरी मच फैमिलियर टू यू पीपल। अभी थोड़ा सा फोकस से पढ़ो तो वो आगे जाके बहुत फैमिलियर चीजें हो जाएंगी। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट्स, फिर थोड़ा सा जाना पहचाना माइकोप्लाज्मा, फिर आर्केबैक्टीरिया, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ठीक से, इट्स आर्चेबैक्टीरिया नहीं, इट्स कॉल्ड आर्केबैक्टीरिया। उसके बाद तुम्हारा रिकेट्शिया, फिर क्लैमाइडिया। ये थोड़े से अजीब अजीब से दिखने वाले जो भी नाम है, फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसेट्स, माइकोप्लाज्मा, आर्केबैक्टीरिया, रिकेट्शिया, क्लैमाइडिया, ये सब जो लिस्ट है पूरी लंबी चौड़ी, ये सब कौन है? ये सब एक ग्रुप में आते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब मैं तुमको फिर से बोल रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं कि किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम क्यों कहें? What is the reason behind we should call some organism as a prokaryotic organism? The reason is a definition that we studied. Any cell or any organism which do not contain nucleus in its cell is a prokaryotic cell or prokaryotic organism. So वही लॉजिक यहाँ पे भी लागू होता है। इधर लिखे हुए सातों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अलग है। बैक्टीरिया अलग, माइकोप्लाज्मा अलग, आर्केबैक्टीरिया अलग, रिकेट्शिया अलग, क्लैमाइडिया अलग, साइनोबैक्टीरिया अलग, एक्टिनोमाइसेट अलग। ये सब एक दूसरे से अलग है इन देयर प्रॉपर्टीज।
लेकिन इन सभी को फिर भी एक ग्रुप में क्यों रखा है? क्योंकि इन सभी में एक बात कॉमन है, और वो कॉमन बात ये है कि इनमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं है। दैट्स द रीजन दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एक बताओ बात, सिंपल एग्जांपल, तो क्या मुझ में, तुम में और किसी मैंगो के ट्री में कोई सिमिलैरिटी है? अगर देखा जाए तो कोई नहीं, क्योंकि वो ट्री मतलब प्लांट है, हम ह्यूमन मतलब एनिमल है। फिर भी हम एक बेसिस पे सेम है, सेल के। मैंगो ट्री भी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और हम भी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक उसी तरह से ये सब फंक्शनली या प्रॉपर्टीज वाइज भले ही अलग हो, एक बेसिस पे ये सेम है, दैट इज सेल टाइप। फिर यहां जो डायग्राम आपको बोर्ड पे दिख रही है, थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए उसको देखो, इस डायग्राम को देखो और फिर इसके बेस में इसके नाम को देखो। क्या नाम लिखा है? बायोलॉजी जब भी तुम पढ़ते हो तो एक की फैक्ट तुमको मैं बता रहा हूं। इस की फैक्ट को हमेशा याद रखो कि अगर तुम किसी टॉपिक के नाम को समझ पाते हो, ठीक है ना, किसी टॉपिक के हेडिंग को ठीक से पढ़ते हो या समझते हो, तो तुम 50% लड़ाई वहीं पे जीतते हो। इफ यू अंडरस्टैंड द नेम और अ हेडिंग गिवन टू पर्टिकुलर टॉपिक, then you understand 50% topic there itself, right? That's why I am saying again, just have a concentration on the name for this particular diagram. What is written? General structure of a prokaryotic cell. Did I write structure of bacterium or structure of mycoplasma or structure of cyanobacteria or structure of rickettsia? क्योंकि वो सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, ये किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की नहीं है, ये सभी को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इस डायग्राम में हमने वो सभी फीचर्स इनकॉर्पोरेट किए हैं या वो सभी फीचर्स निकाले हैं जो किसी ना किसी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो कुल मिला के ये जो डायग्राम है जो बोर्ड पे दिख रही है, ये जो डायग्राम है, ये सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। अब हो सकता है कि इनमें से कोई स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर प्रोकैरियोट में शायद प्रेजेंट ना हो, ठीक, लेकिन किसी और प्रोकैरियोट में हो। इसीलिए हम इसको किसी स्पेसिफिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की डायग्राम नहीं बोल रहे, वी आर कॉलिंग दिस एज अ जनरल स्ट्रक्चर। तो आगे भी फ्यूचर में जब तुमको ये नाम दिखे जनरल स्ट्रक्चर, किसी डायग्राम के बेस पे या कहीं पे लिखा मिले जनरल स्ट्रक्चर, तो जनरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला। जैसे दिस डायग्राम हियर इज रिप्रेजेंटिंग the whole group of prokaryotic organisms that you need to understand first. Is it okay? Now you have a look at diagram itself. ठीक, अब जहां तक डिस्कशन का सवाल है, हम इनमें से हर एक स्ट्रक्चर को ऑलमोस्ट डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन, बट अभी के लिए डायग्राम में पोजीशन या लोकेशन वाइज और जितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है उतना डिस्कशन हम यहाँ पे डायग्राम को पॉइंट ऑफ व्यू रख के करते हैं, ठीक। और इस डायग्राम को तुम दिमाग में बिठा लो और एक होमवर्क के तौर पे तुम ये काम कर सकते हो कि हैव अ लुक एट द डायग्राम इन दिस वीडियो प्रॉपरली एंड देन just switch off your just close this video, take a book or take a notebook and try to recreate the same diagram with all the labelings after you have done with this video. That will be a kind of homework or kind of
थिंग कि जो तुमको बताए कि हमको कितना याद रहता है या हमको कितना हम कंसंट्रेशन से किसी चीज़ को देख सकते हैं या उसको कितना रिक्रिएट कर सकते हैं. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. these particular things will come over and over again in different topics across your syllabus, right? So that's the reason I am saying this कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेक्चर को समझने या पढ़ने के बाद आप इस डायग्राम को एक बार निकाल के देखो विदाउट लुकिंग एट द वीडियो और अ बुक, राइट? तो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू. रहा सवाल डिस्कशन का, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं. शुरू कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा, तो फिर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा चीजों को यहाँ से हटा देते हैं. अभी तुम्हारा फोकस उधर नामों पे नहीं होना चाहिए. ये नाम हमने इसलिए लिखे कि भाई तुमको दिखता रहे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के हैं. हमको ज्यादा से ज्यादा ये पता होता है बैक्टीरिया, ठीक, लेकिन बाकी इसके भाई बहन भी है जो प्रोकैरियोटिक टाइप के ही है और बैक्टीरिया नहीं है, अलग है, ठीक. तो इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा. इट विल बी देयर फॉर अ व्हाइल नाउ, बट यू डोंट फोकस एट दिस पार्ट. नाउ जस्ट हैव अ फोकस ऑन डायग्राम. ओके, सो we'll keep this aside. Have a focus on diagram. As I said, it's the general structure of a prokaryotic cell. So what you can see, तो सबसे पहले अगर तुमने डेफिनेशन पे फोकस किया है, अगर तुमने डेफिनेशन पे ध्यान दिया है, तो तुमको सबसे पहले डायग्राम में ढूंढना चाहिए कि न्यूक्लियस है क्या. देखो मैंने एक लेबलिंग यहाँ पे रह गई है हमारी, इसको भी कर लेते हैं. ठीक, हाँ, है क्या न्यूक्लियस यहाँ पे? कहीं नहीं. ये न्यूक्लियोइड है ना, न्यूक्लियस नहीं है. न्यूक्लियस क्यों नहीं है? क्योंकि डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल की है. तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता. यही तो बेसिस है प्रोकैरियोटिक सेल का, करेक्ट? तो दैट्स व्हाई यू विल नॉट फाइंड न्यूक्लियस एनीवेयर. तो अब एक एक चीज को देखना शुरू करो बाहर से अंदर. सबसे बाहर ये जो डैश डैश वाली चीज है, ये क्या है? इसका लेवल ढूंढो. सी दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल. तो आउटर मोस्ट लेयर और आउटर मोस्ट थिंग, सबसे बाहर जो चीज प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है या हो सकती है, वो है ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल. ठीक, अब ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन डायग्राम के बाद, ठीक है ना. फिलहाल सिर्फ इतनी चीज समझो, हम स्ट्रक्चर को समझ लें. तो आउटर मोस्ट लेयर दैट कैन बी प्रेजेंट इज ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल. इट इज फॉलोड बाय, अब इसके नीचे क्या है? तो इसके नीचे है, सी दिस, ये जो स्पेस है, ये स्पेस नहीं है एक्चुअली, इट्स अ स्ट्रक्चर. इट इज सेल वॉल. सेल वॉल एक फैमिलियर टर्म है. तो कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल के भी बाहर है, ठीक है ना. सेल वॉल कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे है. अब सेल वॉल के नीचे और एक बाउंड्री या और एक चीज है, इसको हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं. सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मैंने तुमको इससे पहले भी कहा है, इससे पहले भी हमारा डिस्कशन हो चुका है कि सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन ना हो ऐसा नहीं हो सकता. सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपल्सरी स्ट्रक्चर है, या वो 100% प्रेजेंट होगा ही होगा, राइट? दैट्स व्हाई इसके ना होने का कोई सवाल ही नहीं. अब थोड़ा सा तीनों को मिलाओ. सबसे बाहर कौन था? ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल. उसके नीचे सेल वॉल, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन, राइट? तो सेल ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीन चीजें जोड़कर एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है,
उसे हम कहते हैं सेल एनवलप, मतलब सेल की कवरिंग्स, जो सेल को ओवरऑल प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वी आर राइट नाउ फोकसिंग जस्ट ऑन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, सो लुक एट देम ओनली। कि सेल एनवलप ये जो टर्म है, ये कौन से 3 चीजों को जोड़ के बोली जाती है? ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। जैसे ही हम सेल मेम्ब्रेन के नीचे आते हैं तो यहाँ पे कॉमन डॉट 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 ये जो दिखता है हमको, ये क्या है? तो ये है, as you can see, it's a cytoplasm. If it is not named, we should name it. It is what? It is cytoplasm. जैसे हर सेल में एक कॉमन मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल भी कोई अपवाद या कोई एक्सेप्शन नहीं है। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में यू विल ऑलवेज फाइंड a common fluid or common matrix that is called cytoplasm. Is it okay? Don't worry about the detailed discussion of each of this component. We will do it for sure. I'm again saying we are focusing on structural components only, so look at the positions or look at the location of each and every component perfectly. Like cytoplasm is common or it is spread throughout the cell inside cell membrane, right? Within this cytoplasm, within this common matrix, you see many things. अब उसमें से one by one अगर हम देखें तो यहाँ देखो, these are what? Gas vacuoles. अब इन्हें gas vacuoles क्यों कहते हैं? बड़ा सिंपल सा रीजन है, because they are filled with gases. They are called gas vacuoles. फंक्शन क्या है ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमको इसी साइटोप्लाज्म में और क्या दिखता है? तो हमको दिखते हैं ये राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है इसको भी हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल नामों पे फोकस करो। तुमको नाम ही नहीं पता तो फंक्शन कहाँ से हम याद रखेंगे, राइट? अभी इस बात पे गौर करो या इस बात पे फोकस करो कि सेल, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या है? तो उसमें है राइबोसोम्स, खास करके कौन से टाइप के राइबोसोम्स? तो 70S टाइप के राइबोसोम। अब इसका जो इलैबोरेटेड डिस्कशन है कि 70S क्या, क्यों, ये हम आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जब इसका हर एक कंपोनेंट का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना कि प्रोकैरियोटिक सेल अगर है तो देयर प्रेजेंट 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, राइट? फिर उसके बाद हमको क्या दिखता है? फूड ग्रैन्यूल्स। अब सेल है तो जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए होंगे, फिर न्यूट्रिएंट्स स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो वो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स प्रोकैरियोटिक सेल में इस फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम सिंपली कहते हैं फूड ग्रैन्यूल्स, ठीक? उसके बाद हमको सेल में इधर उधर फैला हुआ मिलेगा आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म शायद हम जानते हैं, नहीं जानते तो मैं अभी बोल देता हूँ। जैसे डीएनए था डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वैसे आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA has multiple roles to play. What are they? We will see afterwards. But now you understand that prokaryotic cell has RNA in the cytoplasm. It has food granules. It has 70S type of ribosomes. It has gas vacuoles and it has plasmids. Plasmids are made up of DNA. For your additional information, जो प्लाज्मिड्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल का एक यूनिक कंपोनेंट है या एक यूनिक हिस्सा है जो मेनली या केमिकली डीएनए से बने हुए होते हैं, राइट? अब इस प्लाज्मिड्स का क्या काम या ये प्लाज्मिड्स क्या है, क्या करते हैं, दिस वी विल सी लेटर, बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट प्लाज्मिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। फिर इसके बाद तुम देखो तो तुमको एक और यूनिक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये देखो मटकियां मटकियां क्या है, एक सिंगल लाइन है जिसके ऊपर ये कुछ चिपका हुआ है। तो मैं बता दूं कि ये जो लाइन है ये है आरएनए और ये जो मटके जैसे दिख रहे हैं ये है
राइबोसोम्स, मतलब कुल मिला के ये कि ये आरएनए और ये राइबोसोम एक दूसरे से जुड़ जाए तो ये बनता है। और इस बने हुए स्ट्रक्चर को, मतलब आरएनए और राइबोसोम्स के कॉम्बिनेशन को हम पॉलीसोम्स कहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, अगेन पहले की तरह फिर से मैं बोलूंगा कि वी विल सी इन अ इलैबोरेट डिस्कशन अबाउट देम आल्सो कि व्हाट आर पॉलीसोम्स और व्हाट दे डू। यहाँ पे समझने वाली बात तुम्हारे लिए क्या है कि पॉलीसोम्स किन दो चीजों से बना है, तो देख लो यहाँ पे आरएनए एंड राइबोसोम्स। फिर हमको दो प्रोमिनेंट चीजें और दिखती हैं जो सेल से बाहर निकल रही है, देखो एक और दो, तो नाम दिख रहे हैं, दिस इज फ्लैजेला, इट्स अ लॉन्ग इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर। शायद हम जानते भी होंगे कि फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए काम आता है या मूवमेंट के काम आता है, तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन है फ्लैजेला। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वो बाद की बात है। फिलहाल अगर है तो फ्लैजेला इस तरह से प्रेजेंट होगा, फ्लैजेला की ही तरह लेकिन छोटे साइज के। और दूसरे अपेंडेजेस भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखे जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रिए और पिलाई। सी दे आर शॉर्टर देन फ्लैजेला एंड दे आर मोर न्यूमरस, ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है देन फ्लैजेला। दे आर कॉल्ड फिम्ब्रिए और पिलाई। उनकी पोजीशनिंग कुछ इस तरह से है। और हमेशा याद रखो कि फ्लैजेला और फिम्ब्रिए में अगर कंपेयर करें तो फ्लैजेला लॉन्ग होते हैं बट नंबर में कम होते हैं, फिम्ब्रिए या पिलाई शॉर्ट होते हैं लेकिन नंबर में ज्यादा होते हैं। फिर अगर कोई दो चीजें रह गई है तो वो है न्यूक्लियोइड और दूसरी चीज जो रह गई है वो है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो इनके बारे में अगर बात करें तो न्यूक्लियोइड इज नथिंग बट, ये जो न्यूक्लियोइड है इट इज नथिंग बट जेनेटिक मटेरियल। हम कल या लास्ट क्लास में इसकी बात कर चुके हैं कि एवरी सेल हैज गॉट इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। हम जिस सेल की बात कर रहे हैं वो है प्रोकैरियोटिक, और हम जो बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट possess न्यूक्लियस। इसी का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। वही आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन और इट इज नॉट प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस, इट लाइज डायरेक्टली इन साइटोप्लाज्म एंड इट इज टेक्निकली कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। इसे टेक्निकली क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हमको पता चली यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में लाई करता है, उस जेनेटिक मटेरियल को क्या हम कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और नो डाउट बाय नेचर और केमिकली ये किस चीज से बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है, राइट। ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं कि केमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द सेल्स इज डीएनए। हियर द जेनेटिक मटेरियल which lies directly in cytoplasm as a cell is a prokaryotic cell, it is called nucleoid। रहा सवाल रेस्पिरेटरी एंजाइम्स का, तो आप लोकेशन देखो, कहाँ दिख रही लोकेशन, the location is on cell membrane or plasma membrane। ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, ये जो सर्कल सर्कल आपको दिख रहे हैं, दे आर representation of respiratory enzymes and they are located on cell membrane or plasma membrane। रेस्पिरेशन मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो फूड को यूटिलाइज करके या न्यूट्रिएंट्स को जो हम खाते हैं या जो बैक्टीरिया खाता है उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करे, एटीपी बनाए। जानते हैं हम एटीपी के बारे में। तो एटीपी बनाने के लिए रेस्पिरेशन होना पड़ेगा और रेस्पिरेशन
करवाने वाले सभी एंजाइम्स या रेस्पिरेशन की पूरी जो सिस्टम है एटीपी बनाने वाली, एनर्जी बनाने वाली, प्रोकैरियोटिक सेल में वो पूरी सिस्टम या वो पूरा एक मैकेनिज्म कहाँ किया जाता है या कहाँ कैरी आउट होता है? वाया रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने उनको भी शो किया, राइट? तो ये सारी चीजें एडिशनली, ये एक चीज हमको यहाँ दिखती है, ये जिससे कौन अटैच्ड है? न्यूक्लियोइड। इट इज कॉल्ड मीसोजोम। इसे क्या कहते हैं? थोड़ा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम इसे यहां लिख देते हैं गैस वैक्यूल। और ये जो चीज है ये एक मॉडिफिकेशन है सेल मेम्ब्रेन का। आप देखो, इट इज मॉडिफाइड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज मीसोजोम। मीसोजोम एक्ट्स एज एन अटैचमेंट साइट फॉर न्यूक्लियोइड। मीसोजोम जो है वो खुद सेल मेम्ब्रेन से मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है और वो न्यूक्लियोइड को, मतलब जेनेटिक मटेरियल को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक? और ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिनमें होता है उनमें हमको शो करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो डायग्राम हमने अभी डिस्क्राइब की, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का। मतलब ये एक डायग्राम इन सभी को रिप्रेजेंट करती है, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि इनमें से सभी में ये सभी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो। क्लियर? दैट एज इट इज अ जनरल स्ट्रक्चर वी आर शोइंग एवरीथिंग दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। सो व्हाट इज माय सजेशन टू यू इज pause the video for a while, okay, like pause the video and look at the diagram. Just get this diagram in your mind and try to recreate this diagram on a plain paper by your own without looking at the book or this picture. Okay, it will help you in many ways in future. रहा सवाल what we will learn in next class, तो हमको नेक्स्ट क्लास में यही सारी चीजें पढ़नी है, बट इन एन इलेबोरेटेड मैनर, लाइक वी विल सी वन बाय वन all these components that you can see in this diagram. That's why I am saying this repeatedly. Just have a proper look at this diagram and you should be able to draw the diagram on your own so that you can understand what are the different components structurally present in a prokaryotic cell. Functions का जहाँ तक सवाल है, we will elaborate each of the structure and what are their functions in next lecture or next time we meet. So this is it with this lecture. I hope you understand the diagram quite well. Okay, thank you.